Hello student, welcome to online lecture series on microcontroller and embedded system electrical engineering 6th semester subject. Myself Kapil Rahman, assistant professor ETC department, St. Andrews Institute of Technology Management, Farugnagar, Gurugram. So students, this is lecture number 7 on unit 3. We cover in the lecture the following topics regarding the 8051 microcontroller input output ports, internal RAM of 8051 and on-chip RAM, and special function registers. So students, about the input output ports, as you know, in 8085 there are 4 ports, each consists of 8 bits or 8 into 4 32 bits. So 8 number of 8051 ports has name P0, P1, P2 and P3. So these can be used as an input or output operations. As you know, out of 40 pins, uh, each port has 8 pin और 8 बिट एंड 8 फोर जा 32, यानी कि आप देखेंगे कि 40 पिन में 32 पोर्ट जो है हमारे पास इनपुट आउटपुट के लिए हम यूज़ करते हैं. ऑल पोर्ट्स आर कन्फिगर्ड एज इनपुट अपॉन द रीसेट. व्हेन जीरो इज रिटर्न टू ए पोर्ट इट बिकम्स एन आउटपुट. तो जैसे कि आप स्टूडेंट देख रहे हैं कि इनपुट आउटपुट के तौर पर हम जो यूज़ करेंगे वो पोर्ट के कन्फिगर होने पर यूज़ करेगा. इनपुट को हम रीसेट करेंगे तब वो इनपुट बनेगा, और जब ये जीरो रिटर्न होगा पोर्ट के ऊपर तो वो बनेगा आउटपुट. ओके, to configure it at input port, one need to be sent to the port. Now student, this is the port 0 basic diagram, circuit diagram, internal circuitry, where we have port 0x latch. As you see in the diagram, there is a buffer, there is a mux multiplexer which is used as an data selector, and there is a transistor which is used for switching purpose, and we have another circuitry, read and read latch, read pin, internal bus, read write to latch. So how it going to work as input output port, let's see. तो जैसे कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट की पोर्ट 0 एक मल्टी फंक्शन पोर्ट है 8051 का, और चूंकि इसका जो स्पेशल फंक्शन एड्रेस है वो 80H तक से स्टार्ट है, तो इट इज़ ए बिट एड्रेसेबल पोर्ट. तो पोर्ट 0 जो है स्टूडेंट वो 80 से H से स्पेशल फंक्शन एड्रेस जो इसका स्टार्टअप होता है और बिट एड्रेसेबल इसका पोर्ट है. जो इसका मेन फंक्शन है, इट कैन बी यूज्ड एज सिंपल आउट इनपुट. ओके, तो जैसे कि आप देख रहे हैं 8081 के अंदर हमारे पास ये 8 बिट्स लगी हुई हैं और हर एक पोर्ट के ऊपर. तो स्टूडेंट जो इसका फंक्शन है वो है, इट कैन बी यूज एज ए सिंपल इनपुट आउटपुट मोड फॉर जनरेटिंग डेटा एंड लोअर ऑर्डर एड्रेस बस फॉर मेमोरी एड्रेस 8D0 से 8D7. In order to use the pins of the port 0 as input output ports, each pin must be connected to a 10 किलो ओम रजिस्टर. जैसे कि आप देख रहे हैं ये सारे के जो सारे 10 किलो ओम के रजिस्टर्स हमने इंडिविजुअली हर एक पोर्ट के ऊपर कनेक्टेड कर रखे हैं स्टूडेंट, ताकि ये कंट्रोल फैशन के अंदर जो वीसी सप्लाई है वो इन पोर्ट्स की सप्लाई पिन्स को मिल सके. अगर हम पोर्ट 0 को सिंपल इनपुट पोर्ट की तरह अगर ट्रीट कर रहे हैं स्टूडेंट, तो जैसे कि मैं आपको बताऊं, इसके अंदर जो दिखेगा आपको वो देखेगा पोर्ट 0 इज यूज्ड एज इनपुट पोर्ट 1. ओके, must be returned to the corresponding 0 latch that cause both the output transistor to switch off and the pin floats into the high impedance state. ये कहता है कि जब आप पोर्ट 0 को सिंपल इनपुट पोर्ट की तरह यूज़ करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 मस्ट बी रिटर्न टू द करॉस्पॉन्डिंग 0 लैच. लैच के अंदर आपको 1 प्रोवाइड करना पड़ेगा, जिससे कि ट्रांजिस्टर आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, स्विच ऑफ हो जाएगा और जो पिन है वो हाई इंपिडेंस स्टेट में चली जाएगी. व्हेन कॉन्फ़िगर इनपुट पोर्ट द माइक्रोकंट्रोलर प्रोवाइडेड टू फैसिलिटीज, दैट इज रीड लॉजिक लेवल एंड फिजिकल पिन्स टू बी asserting reading pin signal. Okay, second point is read content of internal latch by asserting the read latch signal. The latch is read when instruction is read modify read type instruction. These are the two facilities student, depending upon when port 0 is used as simple input port. A read or modify read write signal is one, where the instruction reads the data from port modified and write to the port, vice versa. Okay, now when port 0 is used as a simple output port, then what will happen. जैसे कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट कि पोर्ट 0 को जब आपने कॉन्फ़िगर किया,
आउटपुट पोर्ट के तौर पर, तो लैच पिन डेट आर प्रोग्राम टू जीरो विल कॉज द लोअर फेट टू टर्न ऑन एंड पिन जीरो इज ग्राउंडेड। तो ये वाइस वर्सा हो गया, जब पिन जीरो के अंदर आपने वन डाला था, यहाँ पे आप क्या करोगे, लैच को आप वन प्रोवाइड करोगे, जिससे कि आपका क्या होगा, ट्रांजिस्टर क्या होगा, कन्फिगर होगा, ऑन स्टेट में आ जाएगा। और ऑन स्टेट में आते ही स्टूडेंट क्या होगा, पिन जो है, जो बाकी पिन है वो ग्राउंड हो जाएगी। तो इफ वन इज रिटर्न टू द लैच पिन, फेट विल टर्न ऑफ एंड द पिन विल हाईली pulled high by external pulled up resistors. Similarly, as we discussed in port 0, we also have port 1 concept. सर्किटरी में थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे आप देखेंगे स्टूडेंट, मैं आपको दिखा दूँ कि सर्किट में क्या डिफरेंस है। जैसे कि आप पोर्ट 0 का जो लैच देख रहे हैं, रीड लैच और रीड पिन, ये बिल्कुल सेम है, हाँ इस वाले में बिल्कुल सेम है। ओके, वट द डिफरेंस इज कि यहाँ पे हमने मक्स लगाया हुआ है, वहाँ मक्स हमारे पास नहीं है। देखिए मक्स नहीं है, इसलिए डायरेक्ट जो आपका जो बाइनरी जो आपकी स्टेबल स्टेट्स है फ्लिप फ्लॉप की, वो डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री स्टेट जो है वो ट्रांजिस्टर से जुड़ी हुई है। और यहाँ पे आपका एक इंटरनल फेट पुल अप रजिस्टर आपको लगाया गया है। तो स्टूडेंट द पोर्ट 1, अब आप जैसे कि आप देख रहे हैं कि पोर्ट 1 इज वन बिट इनपुट आउटपुट पोर्ट ऑफ द माइक्रो कंट्रोलर, और इसका जो एड्रेस स्टूडेंट वो 90H से स्टार्ट होता है, जबकि पोर्ट 0 का जो एड्रेस है वो आपका 80H से स्टार्ट होता है। तो इट डज़ नॉट हैव एनी एक्स्ट्रा अल्टरनेट फंक्शन लाइक पोर्ट 0। तो पोर्ट 0 की तरह एक्स्ट्रा फंक्शन नहीं है कि ये नॉर्मली इनपुट आउटपुट फंक्शन की तरह काम करता है। अब ये बात आती है कि जब ये पोर्ट 1 यूज एज ए इनपुट पोर्ट करेगा, तो 1 मस्ट बी रिटर्न टू द कॉरस्पॉन्डिंग पोर्ट लैच बिट। तो लैच बिट पर आपका क्या होना चाहिए, 1 लिखा होना चाहिए। तो इससे क्या होगा, फेट जो नहीं कि जो ट्रांजिस्टर है वो जो स्विच की तरह काम करना है, टर्न ऑफ हो जाएगा। टर्न ऑफ होने से क्या होता है, पिन एंड आउट इनपुट टू द पिन बफर आर पुल्ड अप लॉजिक हाई बाय द इंटरनल पुल नो लोड। ओके, तो पोर्ट इज कॉल्ड एज ए क्वाजी बाई डायरेक्शनल पोर्ट। बाई डायरेक्शन मीन्स टू स्टेबल स्टेट्स, इट एज इट आउटपुट इज पुल्ड हाई विद द पुल्ड अप रजिस्टर्स। If you want to use port 1 as a simple output port, then there are two cases arises. That is, when port 1 is used as an output port, the latch pin that are programmed to 0 will cause a fat turn on, the internal pull up turn on, to turn off, and input to circuit is logic 0. Okay, if 1 is written onto the latch pin, तो क्या होगा कि ड्राइव द इनपुट टू द एक्सटर्नल सर्किट हाई थ्रू द पुल अप द लोअर फेट ऑफ टर्न ऑफ, वाइस वर्सा होगा स्टूडेंट। इसी तरीके से आप जैसे कि यहाँ देखेंगे स्टूडेंट कि वहाँ जो पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2 की बात कर रहे थे स्टूडेंट, तो सेम कंसेप्ट इसमें जैसे लगेगा, मक्स वहाँ भी था, यहाँ भी था, बट व्हाट वी हैव, दैट इज वी हैव प्रोवाइडिंग अ नॉट गेट टू द ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर जिसमें जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये भी एक 8 बिट मल्टी फंक्शनल पोर्ट है, और SFR जो इसका है A0H से स्टार्ट होगा, A0H से। पोर्ट 0 का 80H से स्टार्ट हुआ, 90H से स्टार्ट हुआ पोर्ट 1 का, और A0H से स्टार्ट हो रहा है आपका पोर्ट 2। तो ये भी एक बिट एड्रेसेबल पोर्ट है। फंक्शन इसका यूज है स्टूडेंट, इट कैन बी यूज्ड एज ए सिंपल इनपुट आउटपुट पोर्ट फॉर जनरेटिंग द अपर ऑर्डर एड्रेस बस फॉर द एक्सटर्नल मेमोरी A8 to A15। तो पोर्ट 2 एज ए सिंपल इनपुट पोर्ट। When port 2 is used as an input port, one must be written to the corresponding latch bit. This causes that fat turn off. The pin input to the pin buffer are pulled to logic high by the internal pull-up load. The port 2 is called as a quasi bidirectional port. Now port 2 is a simple output port का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, जैसे कि आप देख रहे हैं कि when 2 port is used as output, the latch pin that are programmed to 0 will cause the fat turn off and input turn logic 0. और अगर आप 1 लिखेंगे तो ये क्या होगा, इट विल ड्राइव द इनपुट सर्किटरी हाई टू द पुल अप द लोअर फेट टर्न ऑफ। सिमिलरली जैसे आपने पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3, अब पोर्ट 3 के अंदर भी यही सेम कंसेप्ट है कि मल्टी डायरेक्शनल पोर्ट है। SFR इसका B0 से, A0H आपका पोर्ट 2, पोर्ट 3 आपका B0H से स्टार्ट होगा, बिट एड्रेसेबल पोर्ट है। मल्टी फंक्शनल पोर्ट जैसे कि यूज एज ए इनपुट आउटपुट पोर्ट, 3 पोर्ट्स हैव 3 स्पेशल फंक्शंस। अब इसके कुछ स्पेशल फंक्शंस हैं, जैसे स्टूडेंट देखेंगे आप अपनी पिन डायग्राम जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, तो आप वहाँ भी रेफर कर सकते हैं कि जो हमने ये पिन डायग्राम डिफाइन किए थे। तो रीड सीरियल इनपुट पोर्ट, सीरियल आउटपुट पोर्ट, ट्रांसमिशन, एक्सटर्नल इंटरप्ट,
जो है जब आपका कॉल होगा तब ये इंटरनल और एक्सटर्नल सर्किट काम करेंगे। और टाइमर के और काउंटर के लिए आप देख रहे हैं जैसे जीरो और एक्सटर्नल इनपुट अब आएंगे तो रीड और राइट का कंसेप्ट जैसे आप देख रहे हैं स्टूडेंट, तो ये पोर्ट 3 उस पर्पज़ के लिए यह डिफाइनेबल है। ओके स्टूडेंट, so this is all about the port 3 description. Now it will work as simple input port। जैसे कि आप देख रहे हैं कि स्टूडेंट सिंपल इनपुट और आउटपुट सिंपल पोर्ट की तरह कैसे काम कर रहे हैं, तो वन मस्ट बी रिटर्न टू द कॉरस्पॉन्डिंग पोर्ट 3 बिट लैच कॉजेज फैट टू टर्न ऑफ, क्योंकि फैट यहाँ पे स्विचिंग की तरह काम कर रहा है। तो पिन एंड इनपुट टू द पिन बफर आर पुल्ड अप टू लॉजिक हाई बाय इंटरनल पुल अप लोड। अगर आप ये सिंपल आउटपुट पोर्ट की तरह यूज़ करोगे स्टूडेंट, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो कि when port 3 uses आउटपुट पोर्ट द लैच पिन्स आर प्रोग्राम टू 0 कॉज फैट टू टर्न ऑन, जबकि सिंपल इनपुट पोर्ट पे फैट क्या होता है, टर्न ऑफ हो रहा है, जबकि आउटपुट पोर्ट में आपका फैट क्या हो रहा है, टर्न ऑन हो रहा है। तो इंटरनल पोर्ट पुल अप टू टर्न ऑफ एन इनपुट टू द सर्किट लॉजिक 0। If one is written to the latch pin, that will drive the input circuit external circuit high through the pull up, and the lower FET transistor will turn off, vice versa। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि इनपुट आउटपुट की तरह पोर्ट 3 के पास कुछ अल्टरनेट फंक्शंस भी हैं, और अल्टरनेट फंक्शंस में अचीव करने के लिए जैसे कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट कि वन ऑफ द आउटपुट फंक्शन अदर कंट्रोल सिग्नल कॉल्ड एज अल्टरनेट फंक्शन इज अवेलेबल ऑन द पोर्ट 3। So depending upon the logic level present on the alternate output function, the FET will turn on off। जैसे कि आप देख रहे हैं कि when the latch bit of the port reach logic 1, the output is controlled by the control input। और port 3 loading and interfacing, तो output buffers of the port 1, 2 and 3 can achieve drive for lower TTL inputs। For port 0 when used in external bus mode, output buffer can drive an 8 LS TTL inputs। In order to drive input, these ports are as port pins require external pull up to drive any inputs। Now if we talk about the 8051 micro internal RAM student, तो आप जैसे देख रहे हैं कि जो रैम का जो कंसेप्ट है उसमें जो रजिस्टर आप देख रहे हैं, एक तो ये है बैंक रजिस्टर जो आपके बैंक 0, बैंक 1, बैंक 2, बैंक 3, 4 बैंक रजिस्टर्स आपका क्लासिफाइड है। एक आपका बिट एड्रेसेबल मेमोरी है जो कि इस तरीके से डिफाइन है, साथ में जनरल पर्पस मेमोरी है जो इस तरीके से डिफाइन है। तो वो ये कहता है कि जो 8051 का जो रजिस्टर बैंक है उसमें उसकी जो क्लासिफिकेशन है 00H से लेकर 1F तक। तो ये आप देख रहे हैं कि स्टूडेंट नीचे जो लोअर लेवल है और ऊपर जो है 1F तक ये गया हुआ है। तो इसके अंदर 8051 यूजेस 8 जनरल पर्पस रजिस्टर्स, तो 8 तरीके के जनरल पर्पस रजिस्टर्स आपके यूज़ करता है। R0 थ्रू R7, R0 से R7, ये देखिए R0 से R7 नीचे वाला लेवल है जिसमें आप R0, R1, R2, R3 ये 8 जनरल पर्पस रजिस्टर्स। और दीज आर 4 सच रजिस्टर्स बैंक्स, तो रजिस्टर इस तरीके से आपके 4 रजिस्टर बैंक्स बने हुए हैं। अब ये जो बैंक का जो सिलेक्शन है या रजिस्टर बैंक वो डन हो किस तरह से डन करते हैं, बाय यूजिंग द, जैसे आपको पता होगा जो हमने डिस्कशन किया कि RS1 एंड RS2 बिट्स ऑफ द प्रोग्राम स्टेटस वर्ड, जैसे हमने प्रोग्राम स्टेटस वर्ड लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था स्टूडेंट, तो वहाँ RS1 और RS2 की जो बिट्स है उनके कॉम्बिनेशंस के यहाँ पर हम इन जो रजिस्टर बैंक जो हमारे 4 क्लासिफाइड हैं उन पर्टिकुलर बैंक्स को हम सेलेक्ट कर लिया करते हैं। ऑन द रीसेट द डिफ़ॉल्ट रजिस्टर बैंक 0 विल बी सेलेक्टेड। तो ये कहता है कि यदि मान लो आपने पिन को रीसेट कर दिया तो हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट आपका कौन सा सिलेक्ट होगा, नीचे वाला बैंक जो 0 जो है आपका सिलेक्ट होगा। आगे कहते हैं कि अगर बिट एड्रेसेबल मेमोरी की बात करें स्टूडेंट, जैसे ये बिट एड्रेसेबल मेमोरी लिखा हुआ है तो इसका जो एड्रेस लोकेशन है वो 20H से लेकर 2FH तक गया हुआ है, या 20H से लेकर 2FH तक हेक्साडेसिमल में। और ये सपोर्ट करता है स्पेशल फीचर, क्या स्पेशल फीचर, दैट इज अलाउ टू एक्सेस बिट वेरिएबल्स। दिस इज वेयर इंडिविजुअल मेमोरी बिट्स इन इंटर रैम कैन बी सेट क्लियर। ठीक है ना, तो सेट भी हो सकती है और क्लियर भी हो सकती है। इन ऑल देयर आर 128 बिट्स नंबर्ड 100 से 7F तक। ओके, बीइंग बिट वेरिएबल any one variable can have a value of 0 or 1।
A bit variable can be set with a command such as set b and cleared with a command such as clear. Okay. If you talk about the general purpose RAM student, तो उस जनरल पर्पस रैम में जो इसकी जो लोकेशन है वो 30H से लेकर 7F तक है, 30H से लेकर 7F. तो even if 80 bytes of internal RAM memory are available for general purpose data storage, user should care while using the memory location from 00 to 2FH. ठीक है. So since these location are also default register space, stack space and bit addressable space. तो जैसे कि आप देखें कि ये भी एक जनरल पर्पस स्टैक है और डिपेंडिंग अपॉन द सुटेबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम्स और द एड्रेस जो आपके स्टैक में आता है, तो वो उसी के हिसाब से आपका ये यूज़ कर सकता है, रजिस्टर स्पेस, स्टैक स्पेस एंड बिट एड्रेसेबल स्पेस. और इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस टू यूज़ जनरल पर्पस मेमोरी फ्रॉम 30H to 7H. जनरल पर्पस रैम कैन बी एक्सेस यूजिंग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड. जैसे कि आप देख रहे हैं इनडायरेक्ट और डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में आगे पढ़ेंगे तो वहाँ भी ये इस तरीके से यूज़ किया जा सकता है. Now student, if we talk about the on-chip RAM in 8051, 4 KB read-only RAM is available for program storage. Okay, so this is used for permanent data storage. Okay, read-only memory, the program is written over there. जो programs हमारे चलने हैं तो वो हमेशा ऑलरेडी रीड ओनली प्रोग्राम के अंदर रहते हैं और हमेशा परमानेंट रहते हैं. और द डेटा विच इज़ नॉट चेंजिंग ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग लाइक द प्रोग्राम और द एल्गोरिथम फॉर स्पेसिफिक एप्लीकेशंस. So student, this is volatile memory and the data saved in this memory does not appear after the power failure. तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि रैम की तरह, जैसे कि आप देख रहे हैं जो फ्रिक्वेंटली आपके जो रैम एक्सेस होने वाले हैं वो रैम के अंदर रहते हैं और वो जब आपका टर्न ऑफ हो जाता है पावर तो आपका वो क्लियर हो जाते हैं, जबकि रोम में ऐसा कुछ नहीं है, रोम में हमेशा वो बने रहते हैं. तो वी कैन इंटरफेस अप टू 64 KB रोम मेमोरी एक्सटर्नली इफ द एप्लीकेशन इज लार्ज. जैसे कि कह रहे हैं कि एप्लीकेशन यदि लार्ज है तो वो 64 KB तक की रैम को जो मेमोरी को एक्सेस कर सकता है. तो दीज साइजेस आर स्पेसिफाइड बाय डिफरेंट बाय देयर कंपनीज. तो कंपनीज के हिसाब से जो 8051 माइक्रो कंट्रोलर डिफाइन किया गया है उनके लिए उनकी जो मेमोरी लोकेशन है वो अलग अलग है. तो एड्रेस रेंज ऑफ पीसी, यानी एड्रेस रेंज ऑफ पीसी का मतलब क्या है, प्रोग्राम काउंटर का मतलब क्या है कि विच पॉइंट्स द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड कैन बी मूव बिटवीन दिस लोकेशंस और वी कैन से द प्रोग्राम फ्रॉम दिस लोकेशन टू द दिस लोकेशन. The address range can be calculated in the same way just like the RAM which is discussed in the previous section. तो जैसे कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट, एड्रेस रेंज ऑफ पीसी इज 00H से लेकर FFF. ये देखिए ये वाला 00 से लेकर ये यहाँ तक गया हुआ है. सॉरी, ये जो लोकेशन है स्टूडेंट ये वाली रही हुई है, इस वाली लोकेशन की बात कर रहे हैं. ये एक्सटर्नल रोम है, जब यदि आपकी एप्लीकेशन अगर ज़्यादा है तो ये फिर उस केस में यूज़ करेगा, जबकि आपका जो इंटरनल रोम है वो इतने ही आपके पास अवेलेबल है. तो 00 से लेकर 0FFF तक आपकी इंटरनल लोकेशन अवेलेबल है. तो यानी कि 4 KB का मतलब क्या हुआ, 2⁻² KB 2⁻10. सिंस 1 KB इज इक्वल टू 2⁻ बाइट. ओके, ये वाला. तो कितना है आंसर इसका, 2⁻12 बाइट आ गया. तो स्टार्टिंग एड्रेस कहाँ से हुआ आपका, जो आपको ये दिखाया हुआ है 00H से लेकर, और मैक्सिमम एड्रेस कहाँ तक गया हुआ है, ये वाला इतना. ओके, और ये बाद में यूज़ होगा जब आपका ये वाला एक्सटर्नल रैम आप यूज़ कर पाओगे. If we talk about the special function register that is called as SFRs, so in 8051 microcontroller there are certain registers which uses the RAM addresses from 80H to FFH and they are meant for certain specific operations. तो specific operations के लिए कुछ ऐसे RAM addresses जो हम 80H से FFH लिखते हैं तो उसके लिए हम कुछ स्पेशल फंक्शन रजिस्टर यूज़ करते हैं, और उनको हम स्पेशल फंक्शन रजिस्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि वो स्पेसिफिक कुछ ऑपरेशंस को ऑपरेट करने में यूज़फुल होते हैं. तो सम ऑफ दिस रजिस्टर्स आर बिट एड्रेसेबल आल्सो, और इन दिस SFR सम ऑफ देम आर रिलेटेड टू इनपुट आउटपुट पोर्ट. जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी हमने इनपुट आउटपुट पोर्ट के बारे में डिस्कशन किया, तो P0, P1, P2 एंड P3 में कुछ बिट एड्रेसेबल मेमोरी भी थे, तो वहाँ पर स्पेशल फंक्शन रजिस्टर हमारा यूज़ होता है.
और सम ऑफ देम आर मीन फॉर कंट्रोल ऑपरेशन, यानी कि कंट्रोलिंग ऑपरेशंस के लिए हमारा स्पेशल फंक्शन रजिस्टर यूज़ होता है। तो टी कॉन, एस कॉन, पी कॉन, इस तरह के हमारे बहुत सारे ऐसे कंट्रोलिंग रजिस्टर्स हैं जो कंट्रोलिंग ऑपरेशंस के तौर पर हमारे रजिस्टर यूज़ किए जाते हैं। रिमेनिंग कुछ ऐसे ऑक्सिलरी स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स हैं इन द सेंस दे डू नॉट डायरेक्टली रेंज कॉन्फ़िगर द 8051। तो डायरेक्टली जो है 8051 को वो डायरेक्टली कॉन्फ़िगर नहीं करते, बट ऑक्सिलरी एसएफआर्स का इनडायरेक्टली उनका रिलेशन रहता है। ओके स्टूडेंट, तो आई होप कि स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो आने वाले लेक्चर्स में और टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।